हेलो बेटे, नमस्कार, सत श्री अकाल। वेलकम टू दी नैक्सट वीडियो क्लिप। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਰਹੀਨੀਅਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਔਨ ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ K ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਓ ਤਾਂ ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਉਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਵੀ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਲਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਰਹੀਨੀਅਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਦੂਸਰਾ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਕੈਟਲਿਸਟ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਕੈਟਲਿਸਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਕੈਟਲਿਸਟ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਫਿਰ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ 1 ਬਾਏ 1 ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਕੈਟਲਿਸਟ ਔਨ ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ K ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन इस साइड ते हो रही है और एनर्जी उपरले पासे ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ। ਆ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਨੇ, ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ, ਆ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ એનર્ਜੀ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਬੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪਦੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ એનર્ਜੀ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਆਫ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ। ਇਹ એનર્ਜੀ ਆ એનર્ਜੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਰ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਇਹ ਹੈ EA। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ EA ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ EA ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ in the absence of catalyst। EA एक्टिवेशन एनर्जी है, पर जो कैटलिस्ट नहीं पाया होया उदों ये इस तरीके नाल जाती है। इनू ओल्ड पाथ कहते हैं, विदाउट कैटलिस्ट। इस ग्राफ तो पता लगू भी जो कैटलिस्ट पावांगे तो स्पीड बढ़ती है। तुहानूं पहला भी दस्या होया कैटलिस्ट की हुंदा, एक सबसटेंस है जिहड़ा की करदा स्पीड नूं फास्ट कर दिंदा ते खुद कंज्यूम नहीं हुंदा रिएक्शन दे विच। The substance which increase the speed of reaction without consuming itself in the reaction। जिन्ने ग्राम रिएक्टेंट कैटलिस्ट पावांगे रिएक्शन ते एंड ते उन्ने ग्राम ही कैटलिस्ट सानू मिल जूगा। तो कैटलिस्ट वो चीज़ है जिहड़ी रिएक्शन की स्पीड नूं वधा दिंदी है। हुण क्वेश्चन है स्पीड नूं वधाउंदी किवें है, तो इहदा आंसर भी सरफेस केमिस्ट्री दे के आए हुए हैं भी ये एनर्जी बैरीयर नूं छोटा कर दिंदी है, एक्टिवेशन एनर्जी नूं घटा दिंदी है, नवा रस्ता दे दिंदी है। तो ये ओल्ड पाथ है विदाउट कैटलिस्ट। एक नवा पाथ आऊगा, वो नवा पाथ बेटे आ गया, आ नवा पाथ आ गया। रिएक्टेंट उही ने, प्रोडक्ट उही ने, रस्ता एक होर मिल गया। इस रस्ते नूं आपां ने की कहता, दिस इज कॉल्ड न्यू पाथ विद कैटलिस्ट। हुण बैरियर छोटा हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी घट के EA डैश होगी। मैनू कोई पूछे EA डैश की है, मैं कह दूंगा एक्टिवेशन एनर्जी इन दी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। आ एक्टिवेशन सी एबसेंस दे विच, आ एक्टिवेशन है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट दे विच। तो कैटलिस्ट ने की काम कीता, एक्टिवेशन दे उत्ते असर कीता। एक्टिवेशन एनर्जी घट जू, टैंपरेचर ते कोई असर नहीं पैण वाला। इत्थे टैंपरेचर कांस्टेंट रहूगा, टैंपरेचर सिर्फ एक ही होऊगा। तो जिवें पिछले जिहड़े पहला टैंपरेचर का इफैक्ट स्टडी कीता सी उह च 2 टैंपरेचर सी। इस क्वेश्चन दे विच टैंपरेचर 2 नहीं बल्कि एक ही होऊगा।
ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਡੈਮੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੋਲਵ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ એનર્ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਰਿਐਕਟੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਿਐਕਟੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦਾ, ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੇਠਲਾ। ਉੱਪਰਲਾ ਰਸਤਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਹੇਠਲਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਛੋਟਾ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਤਾ? ਇਹ ਕੈਟਲਿਸਟ ਨੇ ਦੱਸਤਾ। ਤਾਂ ਕੈਟਲਿਸਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਅ ਨਿਊ ਪਾਥ ਆਫ ਲੋਅਰ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ। ਤਾਂ ਕੈਟਲਿਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਘਟ ਜੂ ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਜੂ। ਤਾਂ ਅਰਹੀਨੀਅਸ ਦਾ ਇਸ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਅਰਹੀਨੀਅਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੈਟਲਿਸਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮਸ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਅਰਹੀਨੀਅਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਗੀ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕੈਟਲਿਸਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸਪੀਡ ਵਧੂਗੀ, ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਵਧੂਗੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਅਰਹੀਨੀਅਸ ਦਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਹ ਗ੍ਰਾਫ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ EA ਤੇ EA ਡੈਸ਼ ਕੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ EA ਹੋਊਗਾ ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਰੰਟਡ ਹੈ, ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈ। ਕੈਟਲਿਸਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਘਟੂਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੈਟਲਿਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੈਟਲਿਸਟ ਆ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਗੱਲ ਹੀ ਕੈਟਲਿਸਟ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੈਟਲਿਸਟ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੈਟਲਿਸਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਵੱਧ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੈਟਲਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕੈਟਲਿਸਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੈਟਲਿਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੈਟਲਿਸਟ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹਾਈ ਹੋਊ, ਇੱਕ ਲੋ ਹੋਊ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਹੋਊ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊ? ਜਿਹੜੀ ਐਬਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊ, ਕੈਟਲਿਸਟ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਲੋ ਰਹੂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊ? ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊ, ਕੈਟਲਿਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ 75.2 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਯੂਨਿਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕਿਲੋ ਜੂਲ ਮੋਲ ਇਨਵਰਸ। ਤਾਂ ਅਰਹੀਨੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰ ਵੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਗੈਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 8.34 ਜਾਊਲ 'ਚ। ਜੇ 2 ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੈਲਰੀ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਕਿਲੋ ਜਾਊਲ ਹੈ। ਜੇ ਬੇਟੇ ਕਿਲੋ ਜਾਊਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਜਾਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਫਿਰ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 8.34 ਜਾਊਲ ਆਪਾਂ ਭਰ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਇਨ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਕੈਟਲਿਸਟ। EA ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇੰਨੀ ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਕੈਟਲਿਸਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ EA ਤੇ EA ਡੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੇ EA ਤੇ EA ਡੈਸ਼ ਲਿਖਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਿਖੀ ਹੋਊ ਵੀ ਆਹ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਹੈ ਐਬਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਬਲਸ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ EA, ਇੱਕ EA ਡੈਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਸਿੰਬਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ EA ਤੇ EA ਡੈਸ਼ ਇਹ ਦੋ ਸਿੰਬਲ ਦਿੱਤੇ, ਦੋ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਦੇਤੀ 75.2, ਦੂਸਰੀ ਦੇਤੀ 50.4। ਇੱਕ ਐਬਸੈਂਸ 'ਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ? ਬੇਟਾ ਉਹ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ will grow ਵਧੂਗੀ in the presence of catalyst if the reaction proceeds at 25 degree Celsius or 298 Kelvin। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਰਹੀਨੀਅਸ ਦਾ log K2/K1 बराबर है EA/2.303 R log T2 - T1/T1 T2। जे तुसी ने गल समझ आ गई थोड़े log नहीं आता ये मूरे log आया log K2/K1 बराबर है EA/2.303 R ब्रैकटा शुरू हो जाती ने T2 - T1 नीचे T1 T2। तो T1 ते T2 दो टैंपरेचर सी। हुण टैंपरेचर दिता इक्को ही आ, मैं जो इनू T1 ਤੇ ਇਹਨੂੰ T2 ਮੰਨ ਲੂੰਗਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਿਆ।
उस क्वेश्चन का बेटे सल्यूशन बनावांगे पर ये सानू ईए कितनी दी हुई है, ये दी है 75.2 किलो जाउल, मोल इनवर्स ईए डैश दी है 50.14 किलो जाउल मोल इनवर्स। टेंपरेचर का पता लग गया 298, आ टेंपरेचर दिता 298 कैलविन, 298 कैलविन ये दिता है। हुण इत्थे मैं लिखूंगा बाय Arrhenius equation log k log a minus EA upon 2.303 RT, एक नंबर इक्वेशन। ये इक्वेशन आपने पिछले वीडियो क्लिप दे विच ड्राइव की हुई है, ये थोनू डायरैक्टली आनी चाहिए है। आ इक्वेशन लिख ली, के रेट कांस्टेंट है, ई फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, एक्टिवेशन एनर्जी, गैस कांस्टेंट, टेंपरेचर। ये हैगा विदाउट कैटलिस्ट, पूरे आप लिख देंगे विदाउट कैटलिस्ट सारा कुछ। अच्छा फिर साडे कोल आ गया जी लॉग के डैश लॉग ए डैश 2.303 RT, ये है बेटे विद कैटलिस्ट। हुण इहदे च तुसीं देखो ईए की थां ते ईए डैश आ गया, के की थां ते के डैश आ गया, ए दे उत्ते कोई असर नहीं, आर दे उत्ते कोई असर नहीं, टी दे उत्ते कोई असर नहीं हैगा। ए आर ते टी नहीं चेंज होंदे कैटलिस्ट दे पाउण नाल, बस माड़ा जिहा ध्यान रखना है। कैटलिस्ट दे नाल जे असर पऊगा तां एक्टिवेशन एनर्जी दे उत्ते ते जिहदा असर पऊगा के दे उत्ते। जे टेंपरेचर कला बदलांगे तां सीधा असर के दे उत्ते होऊगा। तां आ गल्लां आपां ने ध्यान च रखणियां ने, बाकी फैक्टर कांस्टेंट ने। हुण जे कोई मैनूं पुछे भी के की है, रेट कांस्टेंट इन दी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, के कला की है, रेट कांस्टेंट इन दी एबसेंस ऑफ कैटलिस्ट। दोनों नूं सबट्रैक्ट कर दईए, जो असीं सबट्रैक्ट करांगे सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। बेटे 2 चों 1 क्यों घटाना है, क्योंकि मैनूं एक गल दा पता भी जिहड़ा के डैश है वो हाई है ते जिहड़ा के है वो लो। के डैश हाई क्यों है, के डैश दे हाई होने का कारण है कैटलिस्ट पाउण सार स्पीड वधूगी, जे स्पीड वधूगी तो रेट कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट की वैल्यू वधूगी। ते ये विद कैटलिस्ट आ, ये विदाउट कैटलिस्ट आ। एक्टिवेशन घटूगी पर के वधूगी, के ते एक्टिवेशन एक दूजे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ने, ध्यान च रखना है। आ जिवें दस्सिया ईए डैश तो लो हुंदा है पर के डैश की हुंदा हाई, तो आपां ने हाई चों लो घटाउणा है। ये सैकंड चों फस्ट इक्वेशन नूं सबट्रैक्ट करना है, सानूं की मिलूगा आ भी जगह में सारी क्लियर कर दें। वी गेट log k डैश माइनस log k। बेटे जो ये चो आ घटावांगे ये तो लिखा जाओ, log a ते log a कैंसिल हो जाओ, मूरे आ गया माइनस e a डैश 2.303 RT माइनस e a upon 2.303 RT। इन्हें लिख सकते हैं log k डैश अपॉन k, इन्हें लिख सकते हैं ए माइनस रह गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ई ए डैश आर टी 2.303 आर टी अगे आया
ਇੱਥੇ ਬੇਟੇ log k ਡੈਸ਼ ਅਪੋਨ k ਇਹ ਚੋਂ ਆਪਾਂ 1/2.303 ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਈਏ rt या एलसीएम ले लो एलसीएम ले लो ये आ गया ईए ये आ गया ईए डैश मैं ये सारिਆਂ ਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ मैं ਉਹਰੇ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੀ ਹੈ जे फाइनल पेपर च ड्राइव करके दिखानी है ड्राइव करके दिखा दियो जे सीधी यूज करनी है सीधी यूज कर लियो जे किसी दे याद रह जाए तो बड़ा वधिया व्हाट इज के डैश रेट कांस्टेंट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट के रेट कांस्टेंट इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट ई एक्टिवेशन एनर्जी ए एब्सेंस है कैटलिस्ट दे विच ते जे प्राइम लग गया तो प्रेजेंस है कैटलिस्ट प्राइम जदों आऊगा तो कैटलिस्ट प्रेजेंट हो भावें वो ई प्राइम होवे भावें वो के प्राइम होवे नीचे 2.303 RT ਐਸ पूरी इक्वेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ एच दो एक्टिवेशन एनर्जियां ने ਤੇ ਦੋ ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨੇ ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨੂੰ K1 ਤੇ K2 ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ K ਤੇ K ਪ੍ਰਾਈਮ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਨੂੰ EA ਤੇ EA ਪ੍ਰਾਈਮ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੈਟਲਿਸਟ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੈਟਲਿਸਟ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਲੱਗ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਲੱਗ ਨੇ ਕੈਟਲਿਸਟ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ 'ਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੋਊਗਾ ख्याल रखियो हुण आ साडे कोल इक्वेशन है तुहानूं एक्टिवेशन ये भी दित्ती आ भी दित्ती है टेंपरेचर भी पता आर भी पता ये भी पता सारा कुछ पता कर लो ये पता कर लिया लॉग परले पासे जाके की बन जू एंटी लॉग सॉल्व करांगे जिहड़ा आंसर आ जाऊगा मान लो आंसर आ गया 3 तो k डैश बाय k 3 आ गया ਇਹਦਾ मतलब k डैश इज इक्वल टू 3 इंटू k तो 3 गुणा बढ़ गई जे एंटी लॉग लैन तो बाद 20 आ गया तो आपां कहांगे ये 20 गुणा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जूगी इस तरीके नाल सानू रेट ऑफ रिएक्शन का पता लग सकता तुसीं कहोगे सर ये तो रेट कांस्टेंट आ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे किवें पता लगदा मैं हुण उस क्वेश्चन नूं भी सॉल्व करदा ते नाले मैं इहदे च सारियां गल्लां तुहानूं दसदा भी रेट कांस्टेंट ते रेट ऑफ रिएक्शन इत्थे सेम किवें ने वो भी समझाउणा ध्यान नाल समझिओ पहला तो आ दो गल्लां समझ आ गई कोई फर्क नहीं log a ते log a कैंसल हो जू जो सबट्रैक्ट करांगे बाकियां नूं सारा बना के आपां ने इत्थे ले आंदा आ माइनस प्लस बन गई प्लस मूरे माइनस पिछे एलसीएम लेता EA माइनस EA डैश आ मेन इक्वेशन तैयार है इनू यूज करते हैं हुण आपां मैं हुण इत्थे लॉग एंटी लॉग लेके भी दिखाऊंगा किवें आपां ने एंटी लॉग लेना ओहदा एक वीडियो अलग आपां हुण बनावांगे वो भी तुहानूं सेंड करांगे लो जी देखी चलिए अपने कोले गिवन EA इज इक्वल टू 70 पॉइंट कितना दिता होया सीगा इधर 75.2 किलो जूल मोल इनवर्स EA डैश 50.14 किलो जूल मोल इनवर्स ये सानू पता ने टेंपरेचर 298 केल्विन है आर की वैल्यू 8.34 जाउल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स है बेटे ये जाउल आ ये किलो जाउल नहीं थोनू चाहिए किलो जाउल नू 1000 नाल मल्टीप्लाई करो ते जाउल च कन्वर्ट कर लो 75.2 into 1000 जाउल मोल इनवर्स 50.14 1000 ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਊਲ ਚ ਆ ਗਏ ਇਹ ਵੀ ਜਾਊਲ ਚ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਭਰ ਦਈਏ ਕੀ ਮਿਲਦਾ log k dash upon k is equal to EA 75.2 into 1000 minus 50.14 into 1000 divided by 3038.314 into 298 आ सारा कुछ आ गया गल याद रखियो ए के डैश बाय के रेशो है ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ यूनिट खत्म हो जाएंगे ਇਹਦਾ कोई यूनिट नहीं रहना ਇਹਦੇ मगर कुछ लिखने की लोड़ नहीं सारे यूनिट कैंसिल हो जाएंगे जे नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आउंदा तो कैंसिल करके देख लीजिए
आ जाउल मोल इनवर्स ने, ऊपर जाउल मोल इनवर्स आ गया, आर दे यूनिट जाउल मोल इनवर्स ने, थले जाउल मोल इनवर्स नाल जाउल मोल इनवर्स कैंसिल हो जू। एदा केल्विन इनवर्स है के दे नाल, इत्थे आ के ते एदा के इनवर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये सारे यूनिट खत्म हो जाएंगे। मान लो तुसी इहनू सारे नू सॉल्व कर लिया, आ सारा सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके तुहाडे कोल इत्थे वैल्यू आ गई x, ये आ गया log k डैश अपॉन k, ये x दे बराबर आ गया। x मान लो, a मान लो, इत्थे मान लो आप लिख दिए a b c d, a पॉइंट b c d आ गया, चार अखर लिख ले, पॉइंटां लिख ले a पॉइंट b c d, सारा सॉल्व करके हुण सॉल्व करांगे, होर वध टाइम वधदा जाऊगा, तो मेन गल दे उत्ते उन्हें आ सारा सॉल्व करके साडे कोले आ पॉइंट आ गया। हुण आपां इस क्वेश्चन नूं किवें सॉल्व करना है, इदों अगे किवें लैके चलना है, वो ध्यान नाल देखो। इत्थे बेटे k डैश अपॉन k इज इक्वल टू एंटी लॉग a पॉइंट b c d आ गया। जिहड़ा इधर लॉग है वो परले पासे जाके एंटी लॉग बन जू, तो k डैश बाय k बराबर एंटी लॉग ऑफ a पॉइंट b c d। जिन्होंने एंटी लॉग देखना आ गया, ये मान लो सारा सॉल्व करके x आ गया, k डैश अपॉन k, और k डैश इज इक्वल टू x k, rate constant becomes x times rate constant becomes की हो जाएगा x times in the presence of catalyst। हुण बोर्ड दे उत्ते स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई, थोनू पता पर स्टेटमेंट किहड़ी आ, तुसी नोट करी बैठे हो, तुहाडे कोल बुक होगी, बुक नूं ओपन कर लो, वो 7th क्वेश्चन है, मैं उहदी स्टेटमेंट बोर्ड ते लिखी सी। किसी बच्चे कोले बुक नवीं पुरानी होने करके क्वेश्चन अगे पिछे दिता हो सकता, स्टेटमेंट नूं कंपेयर करोगे पता लग जू। वो एंड ते पुछया सी हाउ मैनी टाइम्स द रेट ऑफ रिएक्शन विल ग्रो, रेट ऑफ रिएक्शन विल ग्रो, इत्थे रेट कॉन्स्टेंट है, तो आप रेट ऑफ रिएक्शन ते रेट कॉन्स्टेंट च फर्क नहीं समझना, समझना है। हुण मैं इत्थे की दसना चाहना है, लो देखो, rate of reaction is equal to R K into concentration of A the power n। कोई ऑर्डर है, n is equal to order of reaction, मे बी 1, मे बी 2, मे बी 0, मे बी एनी, ज़्यादातर ये 1 होगा, तो n की वैल्यू 1 है, ये रेट ऑफ रिएक्शन आ गई in the absence of catalyst, absence of catalyst। एनु मैं R लिखता, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन R डैश K डैश A दी पावर n, presence of catalyst। बेटे थोनू पता है इस गल का भी के ते आर दोनों के उत्ते कैटलिस्ट का असर होंदा, जिहड़ी रेट पहला आर सी हुण आर डैश होगी, जिहड़ा रेट कांस्टेंट के सी वो के डैश हो गया, एक कंसंट्रेशन की पावर एन है, इत्थे भी कंसंट्रेशन की पावर एन, एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, दोनों नू डिवाइड कर लो, जो दोनों नू डिवाइड करोगे ए दे नाल ए कैंसल हो जाऊगा, तुहाडे कोले की आऊगा जो डिवाइड करोगे अपॉन डिवाइडिंग आप लिखांगे आर डैश अपॉन आर के डैश अपॉन के, ए नाल ए कैंसल हो जाऊ, जे के डैश अपॉन के आर डैश अपॉन आर दे बराबर आ, तो फिर आ लैंग्वेज भी सेम होगी, जिथे रेट कांस्टेंट बिकम्स इन्ने टाइम्स आ, उत्थे कह देंगे रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स एक्स टाइम्स। तो तुहानू मैनूं लगदा गल समझ आ गई। कई बच्चों नूं इत्थे हुण मैं की लिख सकदा,
therefore r dash upon r is equal to x, r dash is equal to xr, rate of reaction will grow x times in the presence of catalyst। ਇਹ numerical पेपर च आऊगा, स्टेटमेंट बदल सकती है पर कैटलिस्ट वाला क्वेश्चन आऊगा, तुसीं इहनूं ध्यान नाल समझना है। मैं ये कल्ले कल्ले पॉइंट नूं तुहाडे सामने रखिया, खुल के रखिया भी रेट कॉन्सटेंट ते रेट ऑफ रिएक्शन च फर्क है, कित्थे इन्हां नूं आपां सेम लैणा, कित्थे डिफरेंट लैणा। आ दोनों की रेशो जिहड़ी है वो सेम है, तो रेशो दे विच जिथे रेट कॉन्सटेंट इन्ने टाइम्स हो जाऊगा उत्थे रेट ऑफ रिएक्शन भी इन्ने टाइम्स हो जाऊगी, तुसीं इहनूं ध्यान च रखना है। दो इक्वेशनस मैं हुण तुहानूं दसूंगा किहड़ी इक्वेशन कित्थे अप्लाई करनी है। एक क्वेश्चन तुहाडे सामने मैं होर रखदा टैंपरेचर वाला, तो फिर कनकलूजन कड्डूंगा, उस तो बाद आपां वीडियो नूं क्लोज करांगे। आ जिहड़ा तुहानूं मैं समझाया क्वेश्चन दे विच सब तो पहलां आपां ने की कीता, एक इक्वेशन ड्राइव कीती। किहड़ी इक्वेशन सी वो इक्वेशन सी log k dash upon k is equal to EA minus EA dash 2.303 RT। ये इक्वेशन स्टार इक्वेशन है फॉर कैटलिस्ट, ये यूज होंदी है। याद रखना है भी जेड़ा k डैश है ये हाई है, जेड़ा EA डैश है ये लो है। जेड़ा K हुंदा वो एक्टिवेशन एनर्जी दे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुंदा। जे K डैश हाई होगा तो EA डैश लो होगा, ऊपर हाई थले लो, ठीक है, मूरे हाई पिछे लो, ये भी ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन तुसीं याद रखना है, पेपर च इहनूं ड्राइव करन दी लोड़ नहीं, थोनू सिखाउण वास्ते मैं ड्राइव कीता है। जिन्हां नूं ये इक्वेशन ऐसा च याद होगी उन्हां नूं की लोड़ है ड्राइव करन दी, सीधा क्वेश्चन शुरू ही इत्थों करो तो आसान हो जाऊगा क्वेश्चन नूं करना। ਇਹ 'ਚ लोड एंटी लॉग की पई जाती है, लॉग की नहीं पै रही, तो इधरों लॉग उधर जाके एंटी लॉग बनी जाता। एंटी लॉग लाओगे आ एक्स आ गया, एक्स की वैल्यू 20 होगी, 20 होगी, तो ये 20 गुणा होगी रिएक्शन। एक्स की वैल्यू 3 होगी तो 3 गुणा होगी, तो एक्स की वैल्यू एंटी लॉग नाल। वो एंटी लॉग का एक वीडियो बनावांगे, जिवें पहला लॉग का बनाया सी, हुण एंटी लॉग किवें देखना है सिखाया जाऊ। जिन्होंने आउंदा वो एंटी लॉग लाओ तो क्वेश्चन सॉल्व करो। एक इक्वेशन जी पिछले लैक्चर ड्राइव की सी, मैं उन्होंने फिर तुहाडे सामने रखदा, देखियो ध्यान नाल। वो इक्वेशन है बेटे log k2 upon k1 EA upon 2.303 r t2 minus t1 t1 t2। एक आ इक्वेशन है, ये भी स्टार इक्वेशन है। आ स्टार इक्वेशन का संबंध कैटलिस्ट दे नाल, ये उदों लागू हो जो कैटलिस्ट नहीं होगा, बल्कि दो टैंपरेचर होंगे, एक T1 ते एक T2, ये उदों लागू हो। एच एक्टिवेशन एक हो, आ कली एक्टिवेशन एक है, टैंपरेचर दो ने, ये दो एक्टिवेशन ने पर टैंपरेचर एक ही है। तो तुसी ने आर की वैल्यू किहड़ी भरनी है, वो एक्टिवेशन एनर्जी के यूनिट देखने ने भी जाउल च ने कि कैलरी च ने, वो हिसाब नाल जे किलो जाउल या किलो कैलरी ने पहला कैलरी च बदल दो, 1000 नाल मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व करो। यूनिटां का ख्याल जरूर रखना है। हुण इहदे नाल रिलेटेड ऐसी इक्वेशन दे नाल रिलेटेड एक क्वेश्चन होर मैं तुहाडे सामने रखदा, लो देखियो। एक तुहानूं मैं पहला दस्सिया सी टैंपरेचर कोएफिशिएंट की हुंदा, तो K2/K1 नूं टैंपरेचर कोएफिशिएंट कहना, तो जो भी टैंपरेचर कोएफिशिएंट हो तो T1 नूं तुसीं 298 ते T2 नूं 308 कैलविन भरना। एक 25 डिग्री सैल्सीयस ते हुंदा, एक 35 डिग्री सैल्सीयस ते हुंदा। तो टैंपरेचर कोएफिशिएंट इज दी रेशो ऑफ रेट कांस्टेंट एट 35 डिग्री सैल्सीयस टू द रेट कांस्टेंट एट 25 डिग्री सैल्सीयस। कल्ला टैंपरेचर कोएफिशिएंट देण नाल वो सानूं आ भी दस दूगा, आ भी दस दूगा। आर सानूं पता हुंदा एक्टिवेशन एनर्जी निकल जूगी। तो उवें ये क्वेश्चन नूं सॉल्व कीता जांदा। मैं एक क्वेश्चन होर दसदा, ध्यान नाल समझियो किहड़ा क्वेश्चन है। मेरे को बेटे थे क्वेश्चन नंबर 2 है, ओदी स्टेटमेंट मैं लिखन लगे। ओदी स्टेटमेंट है रेट ऑफ रिएक्शन
quadruples when the temperature changes from 293 Kelvin to 313 Kelvin. Calculate activation energy. लो जी मैं स्टेटमेंट ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਤਾ ਆ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਰਹੀਨੀਅਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਹੈ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਦੋ ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਦੇ बेटे एक टेंपरेचर देता 293 एक 313 T1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 293 ਕੈਲਵਿਨ T2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 313 ਕੈਲਵਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਤਾ T1 ਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ T2 ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੁਆਡਰਪਲਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੁਆਡਰਪਲਸ ਚਾਰ ਗੁਣਾ quadruples ਦਾ ਮਤਲਬ 4 times ਜੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਡਬਲ 2 times ਜੇ ਟ੍ਰਿਪਲ 3 times quadruples 4 times ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 4 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜੂ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ R2 ਹੈ ਉਹ 4 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜੂ R1 ਦੇ R ਫॉर rate of reaction ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ R2 by R1 is equal to 4 but we know that R2 upon R1 is equal to K2 upon K1 therefore K2 by K1 is equal to 4 R2 by R1 रेशो K2 by K1 रेट कांस्टेंट दी रेशो दे बराबर हुणे आपां जिक्र करके हटे तां मैं इत्थे लिख दूं आ K2 by K1 नूं 4 भर दो कितना आ गया ओ इक्वेशन star equation becomes log 4 EA 2.303 R 313 293 into 313 बेटे ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਭਰੋ ਤੇ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ Have a nice day.